Hi, this is Akash Bhabad. Thank you for contributing in World Record event. आप सभी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये 5th वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाबड़ इंटरनेशनल पब्लिकेशन और ABCD इंटरनेशनल फैमिली का। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के पीछे एक जो कंसेप्ट थी कि कैसे लॉजिक्स आए, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। और जिस तरीके से सभी ने सपोर्ट किया है, इट्स अ मिरेकलस वे। ये जो नाम रखा गया है मैजिकल रिकॉर्ड, तो इसके पीछे मैजिक्स ही हुए, मैजिक्स की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। और बस एंड में यही कहना चाहता हूँ कि जो कल्चर के साथ ABCD इंटरनेशनल आगे बढ़ रही है, ग्रोइंग टुगेदर, और इसका जो लाइव एग्जांपल है आप सभी ने आज रियलाइज़ किया होगा, और हम तो हर बार रियलाइज़ करते हैं। तो ग्रोइंग टुगेदर इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी मैसेज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सभी इसमें सपोर्ट करते रहेंगे, और आगे की जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी विजन मिशन है, जो भी इनिशिएटिव्स है, उसमें आप कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, gratitude. Hello everyone, so my name is Azimuddin and today I am in Delhi for the Budding Authors Conference by ABCD International Family and Bhabad International Publication. Super thrilled to be here, and we would be witnessing many shows like panel discussions, ABCD International Talks, it's a world record attempt as well, writing workshops and many more. So I think it's gonna be a physical extravaganza, physical fiesta for the budding authors. It's their attempt, and I'm just delighted to be here, and let's see how it goes. Thank you. Good morning, Delhi. I'm Preeti Saraswat and equally excited in this daily event because I'm going to have my first book launch, and the book name is My Budding Teenagers. I'm really excited with my budding team to showcase my views, my inner feelings for my budding teenagers. You know, in this book, you can see the short and crisp content, then how to deal with the growing teenagers. And teenager will also feel relaxed by getting their views, by communicating others in a very short and prescribed way. So I really request each and everyone to go through my book, and surely I assure you, you will not have a regret of this, because the book is really precious for everyone. It's for children, teenagers, small kids, parents, and all human beings who all are a part of children or this life. So I'm ready to go to launch my first book, My Budding Teenager, in this Delhi event with the help of Akash sir, who is a CEO of Akash Bhabad Publication. I'm really thankful to Akash sir, who motivated me, not even me, even others, or gave the platform for such people who didn't get the opportunity to showcase their views. So I'm really thankful to sir or the publication, Akash Bhabad Publication, to showcase my inner feelings with the help of the book, My Budding Teenagers. So here we go. Hi everybody, a very blissful morning. So this is such a self-efficating and self-nurturing atmosphere that we have created, and we are sharing with each other. Happy and smiling faces full of blissful vibrance and vibrational alignment. What else we could ask for? So hello Delhi, and I am in Delhi today because this is just the proper physical extravaganza or fiesta that we are following today by ABCD International Family and Bhabad International Publication, and it is nothing but Budding Authors Conference, wherein I am a guest speaker. I am taking part in ABCD International Talk, and I am one of the panelists also. So super thrilled and super nurtured to be here, and at the same time I would also love to congratulate Akash Bhabad, who is just the sole bearer of this personal motive of wisdom acquisition and knowledge sharing. So this is just a proper holistic motive of wisdom acquisition and how it needs to be channelized with certain people for the betterment of society. And this is such a noble idea. Even I sincerely hope that this is going to be totally mesmerizing. It's also a type of world record they are attempting. Grand book launches would be there. Many authors, many budding authors would be here, and they would be launching their own books. Panel discussions would be there. It's a world record attempt as well. International talks covering different types of affairs, different types of agendas would be there.
And I am just here, and n number of people are here, multitude of people are here to just witness this amazing event. So really looking forward to it. Let's see what happens next. Thank you. Hello all, I am Dr. Nidhi Bansal and I am so excited, so elated to be a part of this world record that we are going to make very soon today, and my heartfelt gratitude and my warmest regard to Akash Bhabad International Publication and ABCD family for having this wonderful occasion where we would be seeing an amalgamation of so many poets, writers, authors, budding authors, and we are going to have a huge book launch, and we get to read the minds of so many people, reading their minds aloud and being a part of such a wonderful event. And I think this budding writers conference is such an innovative idea by Akash Bhabad sir, who has always been so innovative in his creation, in his activities, in his sessions that he makes, and I'm sure we are going to learn so much more from him. Thank you so much Akash Bhabad sir for having me on board, and I would also be conducting a poetry session for all our students. Thank you so much. Yes, as we know that we all are together here with one of the, you can say the renowned one and the most humble person, Mr. Akash Bhabad sir. So really thankful to him very personally. And he's the one, Akash sir, he's the one who conducted this session for the students and has always believed to give a platform or an opportunity to all the talented younger minds, as you all are here. Let me explain something or give you a brief review about the ABCD family as he is associated with. Organizer, International Author Success Coach. So he is dignified with all three categories, and even he is a very young and dynamic professional leader. He leads by an example that he is a 3 world record holder. Akash Bhabad had penned down 4 books, and all 4 are available on Amazon. Second is 5 books of qualities for success, and the third one is nothing too extraordinary, and the fourth one is 7 days book, 7 days book writing blueprint. So that means he is able to clear all your points that how you can write a book within 7 days only. It's really itself to touch the milestone. So yes, he is here to guide you, to motivate you, and we all feel privileged that he is going to address our session and the event of it. Akash sir would like to invite you on the stage. Please come and address the event. Yes, I'm taking the charge, but not to break the flow. Really, I will be helpful क्योंकि सबको obviously curiosity होगी कि 1 month में book, 7 days में book और 1 रात में book क्या quality होती है? ऐसे कैसे लिख लेंगे? इतना time, इतने घंटे, इतने pages, how it be possible? Now, I'm going to tell you the reality right now. I'm not talking about anything fascinating thing. We are genius one, we can do math exam last year. I'll tell you the reality. It hardly matters that what will be your thickness of the book. You know, whenever you write, you have to write something original. Readers, यहाँ लाखों जब इतनी books आती है month में, Amazon, Kindle और online भी अगली इतनी books है. आप दिल्ली में नई सड़क पर जाएंगे, आपको 500 बुक्स मिल जाएंगी. क्या वाकई इतनी सारी बुक्स कोई पढ़ता है? I'll tell you the reality exactly. ये पोल में है that about 80 to 90% बुक्स पढ़ी ही नहीं जाती हैं. वो आती है मार्केट में, पब्लिश होती हैं, जिसको जो रॉयल्टी मिलती है, फाइन एंड डम्प्ड. नाउ आवर टारगेट शुड बी कि हमारी बुक पढ़ी जाए, ना कि सिर्फ पब्लिश होकर साइड में कहीं रख दी जाए. सो what I suggest you कि कुछ ऐसा लिखिए that people eager to take your book. आपकी बुक को हर कोई पढ़ना चाहे, इसीलिए आप बुक लिखिए. तो my motive is just
want to enlighten parents, kids, children. मेरी बुक का नाम माय बडिंग टीनेजर है, लेकिन वो बुक सबके लिए है, पेरेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, because it's inculcate everything. Suggestion किसी को नहीं चाहिए आजकल, solution they want. So I'm giving a solution in it. जिन्होंने हाथ ऊपर किया है ना, उनको लगता है कि नहीं मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाहर जाके दोस्तों से बात करते हैं मेरा तो ये हुआ, मेरा तो ये हुआ। वो प्रॉब्लम्स के अलावा बातें नहीं होती है, सही है कि नहीं? आपके दोस्तों में प्रॉब्लम के अलावा बातें होती है क्या? प्रॉब्लम्स हर एक के पास है, तो है ना, इससे बुक को आप यूज कर सकते हैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप जिसमें एक्सपर्ट हो, जिसमें आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे हमारे रिस्पेक्टेड देवेश सर हैं, उन्होंने क्या किया ना, वो उनका एक्सपीरियंस है सेल्स में, उन्होंने सेल्स पे बुक लिखा है। तो सेल्स में किसी का प्रॉब्लम है, अगर मैं बिजनेस कोच हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरा सेल नहीं हो रहा है बिजनेस का, कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो उनका किताब पढ़ूंगा तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं, राइट? तो कोई टीचर, जैसे मैम ने बोला, बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो प्रॉब्लम्स को उन्होंने क्या दिया है, बुक के थ्रू सॉल्यूशन दिया है। तो बुक क्यों लिखना है? सॉल्यूशन। और आपके पास आपके फ्रेंड्स के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। एक फ्रेंड बोलता है मेरा ये प्रॉब्लम हुआ, ऐसा ऐसा है, तो हाँ तुम ऐसा करो ना, ऐसा करो, ऐसा करो, तो मान जाते ना। अरे तो आपके पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, सिर्फ उसको अच्छे से लेके आना है, राइट? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आई कांट राइट बेटर, मैं बहुत अच्छा नहीं लिख सकते। अच्छा नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखेंगे तो अच्छा लिख पाएंगे, राइट? लोग बोलते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, ठीक है, आप टाइम को अरेंजमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम मैनेज फिर भी नहीं होता है, कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं, आपको खाली आपका कंसेप्ट बताना है। कुछ लोग होते हैं जो घोस्ट राइटिंग करते हैं, वो आपको लिख के देंगे, फिर भी आपका बुक आ सकता है, मतलब टाइम नहीं होगा तो भी पॉसिबल है, राइट? मिथ्स में आपको बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग है ना, मतलब एक दो बार भी उन्होंने बुक लिखा होता है, फिर भी उनके अंदर ये रहता है, क्या होता है मिथ्स में, लोगों को लगता है कि सिर्फ एक्सपर्ट ही बुक लिख सकते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, तो आपको तो सब पता है, तो वर्कशॉप गए तो एक्सपर्ट ही बुक लिख सकते हैं, ऐसा लोगों को लगता है कि नहीं नहीं 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हारा PhD चाहिए, तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस रहेगा तभी बुक लिख सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है मिलेनियर माइंडसेट करके एक बुक था, शायद सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे। और वो जो बुक है, सुनिए, वो जो बुक है, वो सर ने पहले मिलियंस रुपीस कमाए नहीं थे, पहले उन्होंने बुक लिखा था, फिर उसके बाद वो मिलियनियर बने थे। तो मतलब ऐसा नहीं है, देखिए बुक में मतलब हमें एक्सपर्ट होना है, या हम ही एकदम ऐसे 20-25 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी जाके बुक लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको बुक लिख के एक्सपर्ट बनना है। जब आप बुक लिखेंगे ना, तो आप ऑथोरिटी क्रिएट करते हैं, आपके पास ऑथोरिटी आती है, तभी जाके आपको ऑथर लोग बोलते हैं ना। तो आपके पास ऑथोरिटी आती है, तो बुक लिख के आप वो क्रिएट कर सकते हैं। बुक पहले आप ऑथोरिटी करेंगे और फिर बुक लिखेंगे, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद मेरा बुक जो है ना एकदम मिस्टेक फ्री होना चाहिए। मैं तो रोबोट ही हूँ, मतलब 0 एरर। ऐसा मुश्किल है, देखिए हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी से मिस्टेक्स होती है। यहाँ पे भी हम कितना अरेंजमेंट, कितना ये सब कुछ कर रहे थे, फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है। मिस्टेक्स ह्यूमन से ही होती है, मिस्टेक होंगी तो ही समझना कि हाँ हम ह्यूमन से ही, नहीं तो रोबोट जैसा हम काम करते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मिस्टेक्स फ्री, मिस्टेक्स हो सकती है बुक में, पर कोशिश करेंगे जितना, मैडम कोशिश जितना करेंगे अपन बुक को ये करेंगे। और फिर एक और ये होता है कि मेरा बुक कौन पढ़ेगा? आपका बुक कोई पढ़ेगा? आपको लगता है? किसी के अंदर ये फियर होता है, हर एक के, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर ये फियर होता है कि मेरा बुक कौन पढ़ेगा, मैं क्या इतना एक्सपर्ट हूँ, राइट? तो आपको बता दूं, बुक को हम अगर प्रॉपर तरीके से सेल करें तो बुक पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आपको सबसे पहले वो डिसाइड करना होता है।
देखिए, अगर मैंने बुक राइटिंग पे बुक लिखा है और मैम को बुक राइटिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा बुक कितना भी अच्छा होगा तो वो पढ़ेंगे क्या? नहीं होगा। पर अगर मेरा बुक बहुत कॉस्टली है, 1000 रुपीज़ का है मान लीजिए, राइट, और कोई सर है, इनको बुक राइटिंग का सीखना ही है, मतलब कुछ भी हो बुक राइटिंग सीखना है उनको, तो वो कहीं से ढूंढ के आएंगे और मेरा बुक परचेस करेंगे। क्यों? उनका वहाँ पे उनको सोल्यूशन मिल रहा है। तो जब भी हम कोई बुक लिखते हैं या जो भी कुछ ये करते हैं, तो हमें अपना नीश फाइंड आउट, पहले अपने ऑडियंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं, तब जाके हम प्रॉपर ऑडियंस को ही सेल कर पाएंगे, या वहाँ पे हम प्रमोट करते हैं तो हमारा बुक वहाँ पे सेल होता है। तो पढ़ने वाले कौन है ना, तो प्रॉपर हमें वो भी सोचना है कि हमारे बुक को पढ़ने वाले कौन है या हमारे कंटेंट को यूज करने वाले कौन है। सुनिए, आज ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आज करना क्या है मैडम, 1 मिनट आप खड़े हो जाइए। राइटिंग के ऊपर क्या है? बुक राइटिंग कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। यस, एग्जैक्टली। और उसके अलावा क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको हैं वो आप क्लियर करोगे? तो प्रॉब्लम्स को पहले आप तो होता क्या है ना, आज हम क्या करने वाले हैं वो एंड रिजल्ट ध्यान में रखिए। आपको अगर एंड रिजल्ट पता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा लिखने में। आज हम वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं, सब लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बनने वाले हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्यान में रखिए। और होता क्या है, आज हमें टॉपिक कैसे चूज करने हैं, टॉपिक कैसे चूज करने हैं। आज इंडिया के रिलेटेड हमें कुछ लिखना है, मॉरल वैल्यूज, लाइफ स्किल्स के रिलेटेड कुछ लिखना है, और आपको निधि मैम बताएंगे कि कैसे पोएम लिखना है, राइट। तो पोएम सुन के बहुत सारे लोग खुश हो गए, ऑलरेडी लिखते होंगे। तो आज हमें ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करनी है और सब लोग लिख पाएंगे, इजीली लिख पाएंगे। कैसे, वो भी बताएंगे। और जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उससे पहले देखिए, ये वर्कशॉप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, ऐसा मैम का कहना था, और शायद नहीं तो 100% यूज़फुल होगा। तो प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, माइंडसेट होगा ना तब जाके। अभी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे बैठे जो एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं छुट्टी होगा, तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर माइंडसेट होगा ना आपको, अगर सच में लिखना है, एक बार डिसाइड कर लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर माइंडसेट क्या है, मुझे ऑथर बनना है, या आज हम यहाँ पे जुड़े हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, तो आज हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, बाकी कुछ भी हो उधर, राइट। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, एक मेंटर होना चाहिए, कोई ना कोई एक बताने वाला अपना गाइडर होना चाहिए, जो बताएगा आपको प्रॉपरली कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे मिस्टेक्स होते हैं, तो मिस्टेक से कम बचेंगे। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है। उसके बाद प्रॉपर गोल और प्लानिंग चाहिए। तो आज अपने पास गोल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, चाहे कुछ भी हो, और प्लानिंग तो अपन अभी प्लान में है। उसके बाद प्रॉपर एक्शन प्लान भी आपको मिलेगा, और प्रॉपर डेडिकेशन। आप सब डेडिकेटेड होंगे ना तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी फील्ड हो, डेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट। और बुक लिखने में भी डेडिकेशन होगा। आपको बताया था मैंने एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 20-20, 25-25 साल का सिर्फ सपना होता है कि उनके पास उनको बुक लिखना है, पर नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ठान लिया ना, तो वो 7 दिन में भी कंप्लीट कर पाते हैं। तो प्रोसेस क्या हो सकता है इसका? सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, टॉपिक फाइंड आउट करेंगे। अभी अपन क्या करने वाले हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ही जाएंगे। टॉपिक हमारा क्या है, इंडिया, लाइफ स्किल्स, मॉरल वैल्यूज, राइट। ये सब टॉपिक्स हैं। और ऑडियंस कौन होंगे तो वो भी अपन डिसाइड करते हैं। ऑडियंस अपने लिए चलेगा जो भी है, मतलब यहाँ पे सब मिक्स क्राउड है ना, तो टीचर्स वगैरह है तो वो उनके बच्चों के लिए लिख सकते हैं, एनीथिंग, मतलब आपको किसके लिए लिखना है वो आप डिसाइड करेंगे आज, राइट। और वो बुक में फिर उस वैसा आर्टिकल या पोएम जाएगा। तो जनरली जो बाकी जो इंडिविजुअल हम लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले टॉपिक फाइनल हुआ तो उसके बाद हमें ऑडियंस फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने बिजनेस के रिलेटेड बुक लिखना है, तो बिजनेस के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि बिजनेस में कौन,
जिनका टर्नओवर 10 लाख से कम है वो, या नए नए बिजनेस में आ रहे वो, या जिनका टर्नओवर 1 करोड़ तक का है वो, या 1 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए लिखना है। उनके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे ना, उनके प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे। तो अब मुझे किनको सॉल्यूशन देना है वो सोचना है, देखना है, राइट। तो आपको पहले सोचना है कि आपको कौन से प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन देना है, राइट। तो आपके ऑडियंस बन जाएगा, वो ऑडियंस को ही आपको स्टिक करना है, तब जाके आप अपना बुक बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आपको नाश्ता करना है कि नहीं? तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले अपन टॉपिक फाइनल करेंगे। टॉपिक आज का जो अपन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं उसके लिए इंडिया, लाइफ स्किल्स, मॉरल वैल्यूज, ये सब अपन ने डिसाइड कर लिए। ऑडियंस भी अपने को पता है, आपको डिसाइड करना है कि मैं किन के लिए लिखना चाहती हूँ या लिखना चाहता हूँ, राइट। आपको डिसाइड करना है, आप बच्चों के लिए लिखो, बड़ों के लिए लिखो, कुछ भी है आपको लिखना है, राइट। अभी जब अपने पास ऑडियंस और टॉपिक फाइनल होता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, प्रॉब्लम्स को ढूंढना, राइट। आर्टिकल्स या कुछ ऐसा बुक लिखेंगे आपको तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स, उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो देखना उस पर्टिकुलर फील्ड में। हाँ, तो वो जब वो आप कर पाएंगे तो आप सॉल्यूशंस दे पाएंगे। प्रॉब्लम पता चलेगा तभी सॉल्यूशन देंगे, राइट। तो फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। और वो सब ये जो WHE टेक्निक है बहुत अच्छा टेक्निक है, जब आप प्रॉपरली उसको सुनेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और वो WHE टेक्निक से आप अपना कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी कंटेंट को क्रिएट करने तक, यहाँ तक तो आपको पता चला कि हाँ चैप्टर्स उसके बन सकते हैं, पर उसको प्रॉपरली कैसे आप लिख पाएंगे, मतलब एक अच्छा राइटर अगर बनना है, अच्छा चैप्टर डिजाइन करना है तो उसके लिए क्या टेक्निक्स होती है, उसके लिए कैसे हम कर सकते हैं, तो वो अपन मैम के वर्कशॉप के बाद देखेंगे, शॉर्टली देखेंगे, कुछ नहीं 15-20 मिनट में। और फिर अपन उसके बाद एक्टिविटी भी करने वाले हैं। एक जोरदार तालियां अपने लिए। तालियां जोरदार इसलिए कि इस वेदर में, छुट्टी के दिन में और ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, राइट। भाई जोश नहीं दिखेगा तो आई एम सॉरी, ये कंडक्ट करने में मुश्किल है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स मुझे सबका पूरा चाहिए, great. And I'm thankful to Bhatia sir for gracing the occasion. And मेरे एक कॉल पे उन्होंने इस occasion पे आने के लिए agree किया. Thank you so much sir. अच्छा मुझे बताइएगा पोइट्री कौन-कौन लिखता है? सब मुस्कुरा रहे हैं, तो लिखता कौन-कौन? सब वही लिखते हैं। और किसको इंटरेस्ट है पोइट्री लिखने में? सबसे पहली बात तो ये बताइए। पढ़ने में क्या मैं पढ़ के ही सुना दूं खाली? सीखने का मन भी है, सीखने का मन है। चलिए कम से कम एक आवाज तो आए मेरे पास, सीखना है। That's the spirit. जब सीखने वाले हो तो सिखाने वाले को भी मजा आता है। जब मैंने पोइट्री की अपनी जर्नी शुरू करी तो मुझे ऐसा लगता था कि जब आप एक वर्ड को वर्ड से राइम करा देते तो वही पोइट्री, राइट। मैं भी यही सोच के चली थी कि मैंने अगर वर्ड से वर्ड को ज्वाइन करा दिया, राइम करा दिया, तो वही मेरी पोइट्री शुरू हो जाती है। और चाहे कई बार वो एक इमोशन को हम स्लिप करने देते थे, उस थॉट को स्लिप करने देते थे, लेकिन हमारा वर्ड राइम कर रहा है, दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो इस चीज़ को जब मैंने देखा तो लेकिन सोचा कि नहीं ये गलत है, खाली राइमिंग इज नॉट पोइट्री। जब अनराइम्ड फॉर्म को हम एक्सप्रेस करते हैं और अपने थॉट्स को फ्लो करने देते हैं, फ्लूइड फॉर्म में ले आते हैं, तो दैट इज पोइट्री इन अ डिफरेंट अनराइम्ड फॉर्म। वो हमें कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक फाउंडेशन नहीं देता है कि हमें पोइट्री सिर्फ राइमिंग फॉर्म में करनी है। एंड उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, एंड देयर आर सो मेनी, ओवर 108 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री विच आर अनराइम्ड एंड विच कैन बी यूज टू आवर अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपने राइटिंग स्किल्स के हिसाब से अपने यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं अभी आपको ये बोलूँ कि 2 मिनट के अंदर मुझे कौन पोइट्री लिख के दिखा सकता है, तो आप में से कोई कर सकता है? यू कैन ट्राई। आज चलिए मैं एक टॉपिक देती हूँ, आपके पेन पेपर सब रेडी हैं? ग्रेट। तो पहले मैं एक टॉपिक देती हूँ, अ वेरी सिंपल टॉपिक, फ्यूचर, ठीक है। मुझे 2 मिनट में पोइट्री लिख के दिखाइए फ्यूचर में, चाहे 4 लाइन की हो, 6 लाइन की हो।
How many first can you do? भविष्य की चाह नहीं, वर्तमान को सजा रही, भूतकाल से ही सीख रही, आज के आगाज से कर रही। अक्सर क्या होता है, हम इन्हीं गलती करते हैं, जब हमें फ्यूचर एक टर्म दे दी जाती है, एक वर्ड क्लास में कह दिया जाता है, ऑलवेज वी आर यूजिंग फ्यूचर कैसा होगा, बट आपको वर्क किस पर करना है, प्रेजेंट कैसा चल रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट ही हमारी फाउंडेशन है हमारे फ्यूचर। So always feel free and do something new every day. Thank you. 10 लोग होते हैं 10 आइडियाज़ के साथ, और आप उनका जब एक एक लाइन पिक करते हैं, एक एक थॉट पिक करते हैं और अपने कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं, तो आपको एक मोती की माला बन जाती है जिसमें आप एक मोती में लपेट के करते हैं, एंड वही कविता है, वही पोएम है। So this is the essence of writing a poem, that it is all about your emotions, your thoughts, right? तो अगर जब आप घर जाके एक एक्टिविटी कीजिएगा, एक कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, राइट? न्यूज़पेपर आप उठाइए, उसकी ब्रॉड हेडलाइंस जो है उनको कट कर लीजिए, उनको एक बैग में डालिए और उनको फुल कीजिए अच्छे से, और एक एक करके निकालिए। जब आप पहला एक हेडलाइन निकालते हैं, उसके बाद आप उसमें एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन्स, फ्रेजेस, वर्ब्स कुछ भी ऐड कीजिए, और दूसरा जब आप निकालते हैं उसको जॉइन कीजिए, ठीक है? तो एक न्यू थॉट ऑफ लाइन शुरू हो जाती है, ठीक है? न्यू लाइन ऑफ थॉट शुरू हो जाती है, एंड आप जब वो कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक पीस होगा जो आपका खुद का क्रिएटिविटी होगी, खुद की क्रिएटिविटी होगी, खुद का एक थॉट प्रोसेस उसमें आप डिवेलप करते हैं। So that is how you can start writing attentive poetry, ठीक है? और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक राइम फॉर्म में ही लिखें, that is absolutely not required. Okay, so now we begin with this workshop, poetry workshop, और इसमें हम अपने जितने fears हैं of rhyming उनको हम दूर करेंगे, और किस तरह से हम poetry को attempt कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। Any doubts you can just come up with me. आकाश सर, आप मुझे बता सकते हैं कि जब आपको लगे कि भाई नहीं टाइम हो चुका है, बिकॉज महिलाओं को जब आप माइक दे देंगे तो कहीं पर भी वो छोड़ने के मूड में नहीं रहती हैं। Thank you so much for inviting me to this event. It was nice to see writing poem just in a period of 1 minute or 2 minutes. So basically, I am a teacher. Started my career from Sardar Patel Vidyalaya. I don't know how many of you know about this school. It is one of the premier institution of Delhi. Started as a trained graduate teacher. Within 1 year's time, I was a postgraduate teacher of the school. Took over as principal in 1990 in Gurgaon. And since then, of course, I have never looked back. Worked with some big groups, worked with Presidium Group as Director Expansion, Director Audits, worked with DPSG Group of Schools as Director Education, worked for Noble High Schools as Director Education, worked for GD Goenka School also. I was running my own school also in Gurgaon. Got the most prestigious award of CBSE, the Best Principals Award from the Hare Krishna. There are a few things I'd like to share. We have been interviewing teachers for the post of Hindi teacher or English teacher, and we generally ask them, do you remember any poem other than what you have been teaching in your school? Our normal question is, do you remember any poem? Can you recite any poem which you don't teach in the classroom? And generally we find
90% of them, they don't remember even a single poem which they learnt in their school or when they were in college or otherwise. Now that is the state of affairs. Shakespeare, I think everyone has heard the name of Shakespeare. And his mother said, your English language is very poor. The mother of Shakespeare, she said, your English language is very poor, and in case you don't clear your examination this year, I'll stop your education. And Shakespeare could not clear his MA examination, and his education was stopped. But remember one thing, if anyone wants to do MA across the board, I'm using the word across the board, without studying Shakespeare, you cannot get your post-graduation or graduation degree. That was the kind of level of Shakespeare. The mother said, your language is poor, and everyone has to read. I'm sure you all must have read Shakespeare at some point or the other. A great writer, and still I think we all are motivated by what he has been writing. Well, when I was in Sardar Patel Vidyalaya, I had a colleague, he used to forget a lot of things. Going to sit in his car, keep his specs on the car, and he'll go away from that place without even picking his, the specs. I asked him, he said, I remember 1 lakh poems. Used to forget a lot of things, but he used to remember 1 lakh poems. So you give it a piece of paper and you say that this is on which, we want a poem to be written. And I think he used to write in flow, and used to write, we call it Chandpad. If a poem is not Chandpad, it's not a poem. You may create something. So he used to write Chandpad, he used to write ballets for the school, and our morning assembly, we used to sing one shaloka kind of thing. In case you wish to note down, I think that is what has been motivating me also. I'll just say it out in case you wish to write. You can write that one. Swayam Vidhata Hohe Manav, Antar mein Vishwas Jagao, Chalo न मिलते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति से पुलकित, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ. I repeat in case you want to write it, or in case you want to record it. स्वयं विधाता होहे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति से पुलकित, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ. So this is something. Talk about the theory of karma, and karma says that you have to build your future. What you are going to become is by virtue of your hard work. So you are the creator of your destiny. This is the basic meaning of this particular thing we used to sing. And I'd put that on the, there is a wall of the alumni. I'd put this on the wall, and there were so many old students from Sardar Patel Vidyalaya, they remembered that this is what we used to sing in our assembly. I think it's going to be a workshop for all of you. You all are budding artists, and I think it's a world record event. I'm sure we'll be able to see the good results. I wish all the best to all of you. Thanks, Nidhi. You will link very well with this story. थोड़ी सी प्यार भी है, मोहब्बत भी है, थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी है, और आज के टाइम में जो वैल्यूज हमें चाहिए वो इस बुक में बहुत अच्छे से
मेरे बेटे ने लिखा है, तो आई श्योर ऑल ऑफ यू विल लाइक दिस बुक। और जितना पोइट्री की बात हो रही है, तो मैं भी थोड़ा सा 2 लाइन यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। आई होप इट इज ओके, वी आर नॉट रनिंग फॉर टाइम। ओके, सो फॉर too many times we let unimportant things into our mind, and then it's usually too late to see what made us blind. So be sure that you let people know how much they mean to you. Take that time to say the words before your time is through. So I would like to take this opportunity to thank Akash ji. He's a go-getter, very inspirational, very motivated. इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया। I think हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है इनकी लाइफ से। And I want to thank the publication house for printing the book. और आखिर में जो मैं अपनी लाइफ में I am as a vice principal in Chandigarh, and I put in 15 years of service, plus I'm a trainer with CBSE. So this is one time when I want to just share one lesson, you know, which all of us learn in our own lives. तो इसके लिए मैं, अगर आप मेरे को इजाज़त दें, तो मैं 4 पंक्तियाँ इसके लिए बोलना चाहूँगी कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है और शम्मा पहलवानों को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हमारा एक लाइफ लेसन है कि हम सबको याद रखना चाहिए। And I think a big round of applause for everyone who's here. Thank you so much, sir. आकाश जी, बहुत आपका धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को इतनी जल्दी इस बुक को पब्लिश किया है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। मैम कितने दिन में बुक लिखा है उन्होंने आई थिंक 1 वीक, हाँ 7 days। 1 week मतलब कितने दिन, 7 दिन होता है पॉसिबल? लाइव एग्जांपल। मैं एक एजुकेटर हूँ। कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ मैं एज ए डायरेक्टर, एज ए एडवाइज़र जुड़ा हुआ हूँ। आज की इस इवेंट के लिए, जिसके लिए मुझे इन्होंने इनवाइट किया था एज ए गेस्ट स्पीकर, जो ऑब्जेक्टिव था लोगों को इनकरेज करना लिखने के लिए, पोइट्री लिखने के लिए, आर्टिकल्स लिखने के लिए या बुक्स लिखने के लिए। मुझे लगता है कि जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें काफ़ी टैलेंट है। शॉर्ट टाइम में 1 मिनट में पोएम लिखना, चाहे वो 2 लाइन की पोएम हो, चाहे वो 4 लाइन की पोएम हो, एक अच्छा मूव है। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट है, इसके लिए मेरी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। Hello everyone, congratulations Akash and ABCD International for always coming up with such a great energy. Every time I go and I be a part of their events, be it online or offline, the topics Akash is selecting, the energy which is passing on is really something which needs lots of applause. And Akash is being very kind, and this is the right time where we have to encourage youth to come ahead, because they are having lots of talents, and this is the right platform where not only youth but people of any age. I can see that there are some people who are youth, there are some people who are just lagging behind in their career, and Akash is giving them the platform. That is something very amazing. All the best, keep doing the good work that you are doing. Hi everyone, I am Vinita Arora. I am PGT English in Bharatram Global School. I am here to attend the first session by Akash sir, and I am really blessed to meet so dignified and wonderful people over here, and it's a great learning lesson for me today. He has, Miss Nidhi, Urja Nidhi has given us great guidelines on writing poetry. Akash sir has told lot of the things about how to publish our books. So I'm really blessed. Thank you. I'm Dr. Tazeen. I'm the MD of IARA Research Solutions Private Limited. And today is event में I came through a common friend of mine, Alisha. She brought me here, and I'm really grateful to her कि वो मुझे इस event में लेके आई है. I got to meet few budding authors as well as poets. There was this Miss Nidhi whom we met, and she is really an awesome poet. And really congratulations to Mr. Akash, who has organized this absolutely amazing event, and Babat Publishers also.
I mean, they are giving a platform कि जितने जो authors हैं जो किताब लिखना चाहते हैं, they don't know how to write, they're giving this wonderful platform to them. So a huge round of congratulations to Mr. Akash. Thank you. मेरा नाम देवेश मोहन है. मैं एज अ डायरेक्टर फॉर बिजनेस डेवलपमेंट अलाइंसेस एक यूके की सॉफ्टवेयर कंपनी है कैनोनिकल, उसमें कार्यरत हूँ. उसके साथ साथ मैं लीडरशिप कोच भी हूँ और मेरी अपनी कंपनी है लीडरशिप कार्ड, उसमें मैं एज अ फाउंडर पार्टनर हूँ. और मेरा एक अपना NGO है गिव बैक टू कम्युनिटी, जिसके थ्रू मैं 1000 बच्चों को सपोर्ट करता हूँ उनके पढ़ाई में. तो ये मेरा परिचय है. इसके अलावा मैं भाभड़ पब्लिकेशन से और आकाश से लगभग पिछले 3 से 4 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ, उनको जानता हूँ. और मैंने अपनी बुक लिखी है, आई एम अ फर्स्ट टाइम ऑथर. मैंने अपनी बुक लिखी है बिल्ड योर सेल्स मसल, जो कि मेरा अपना खुद का 20-22 साल का एक्सपीरियंस है. उसको मैंने अपनी इस बुक में पिरोया है और उसी के तहत मेरी आकाश से मुलाकात हुई. फिर उसके साथ मैंने बात करी और फिर इवेंचुअली आकाश भाभड़ ने अपने भाभड़ पब्लिकेशन के थ्रू मेरी बुक को पब्लिश किया. एंड इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. काफ़ी अप्रोचेबल हैं आकाश और हम लोग काफ़ी चीज़ों पे कैसे उस बुक को और अच्छे से उसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ों को उसको निखार सकते हैं, उन सब पे हमने डिस्कशन किया और उसको हमने पब्लिश किया. तो नेक्स्ट पैराग्राफ ऐसे होता है कि जब आपने बताया तो अभी आपको ऐसे कुछ फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में बताना है जो आप एक्चुअली बताना चाहते हैं वो चैप्टर में, राइट. तो उसका शॉर्टकट में जैसा अपन ओवरव्यू जैसे टाइप देते हैं ना, वैसे आप 2 पैराग्राफ्स बना सकते हैं. फिर उसके बाद आता है एक्शन, राइट. एक्शन में क्या आएगा फिर? अभी आपने क्या किया, सबसे पहले हुक, उनको क्यूरियोसिटी जनरेट किया. अभी वो पढ़ेंगे तो क्या आएगा, इसेंस, मतलब उनको क्या मिलने वाला है वो उनको पता चलेगा, राइट. तो जैसे अगर मैं मान लीजिए हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ, राइट, बुक में हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ, तो हेल्थ के कुछ ऐसे टेक अवेज उनको मिलने वाले. मान लीजिए वेट लॉस का कुछ बताने वाले, तो वहाँ पे उनको पता चलेगा अभी यहाँ पे वेट लॉस का मिलने वाला है, इसेंस पता चलेगा उनको. अभी एक्शन, अभी उनको पता चला टेक अवेज क्या है, तो एक्शन में आप उसको पूरा ब्रीफली उसको पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं. मतलब आप उसमें क्या डालेंगे, टूल्स डाल सकते हैं, टेक्निक्स डाल सकते हैं, कैसे करेंगे, हाउ का जो आता है ना पार्ट वहाँ पे आएगा. तो एक्शन में सब जो आप रूल्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स जो भी आपके पास है जो आप देना चाहते हैं वो पूरा डिस्क्राइब करेंगे. तो उसके बाद एक के बाद आता है T फॉर ट्रस्ट. अभी जो आपने बताया है, मान लीजिए वेट लॉस का एग्जांपल लेते, वेट लॉस के बारे में आपने उनको बताया सर. अभी आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे तब जाके उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा, राइट. तो मैंने आपको बताया था ना, मैं थोड़ा चेहरे से समझ लेता हूँ. मेरे मेंटर है, उन्होंने मुझे सिखाया है कि किसी के भी चेहरे को देख के मैं समझ जाता हूँ कि इनको समझ में आया नहीं आया क्या है. तो करने का क्या है, अभी क्या है, ट्रस्ट, T फॉर ट्रस्ट. ट्रस्ट में क्या होगा, आप ट्रस्ट कब कर पाएंगे किसी के ऊपर? अगर ट्रस्ट करना है कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा मुझे. अगर मैं आपको बोलता कि मैंने एक दिन में किताब लिखी है और ऐसा है, मैं ऐसा, आपने ट्रस्ट किया है, पर आपको किसी ने बताया होगा, या तो कोमल मैम ने बताया कि कोई बंदा आ रहा है, उसका ट्रेनिंग होगा, उसने किया है, या फिर आप जब अमेज़न पे चेक करेंगे कि हाँ सच में ऐसा कोई किताब देखे, चेक करेंगे आपको दिखेगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा. एग्जैक्टली होगा, राइट. तो हमें क्या करना है ना, जब हम एक्शन प्लान बताते हैं, सॉल्यूशंस बताते हैं, तो वो सॉल्यूशंस का किसी को फायदा हुआ है क्या, वो फिर आप एग्जांपल्स के थ्रू डाल सकते हैं कि हाँ मेरे कोई क्लाइंट था, इनको ऐसा ऐसा फायदा हुआ. जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन में हम किताब लिख सकते हैं. मैं क्यों बता रहा हूँ आपके इसके पीछे, नहीं मैंने तो लिखा, पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताया जिन्होंने 7 दिन में 1 महीने में लिखा, राइट. तो इससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा. वैसे हमें बुक में भी बताना है, हमें क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है लोगों का, राइट. अभी उसके बाद ट्रस्ट के बाद क्या आता है,
एलिवेट एंड डोअर। एलिवेट का मतलब क्या होता है आपको पता है? एलिवेटर स्पीच पता है? नहीं पता? एलिवेट मतलब शॉर्टली आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं, शॉर्ट में बताना है, जो भी चीज़ है शॉर्ट में बताना है। एलिवेट तो जो भी चीज़ आप बता रहे थे, एग्जांपल्स दे रहे थे, उसको शॉर्टकटली आप कंक्लूड कर लीजिए। कंक्लूड करने के बाद लास्ट का एक पैराग्राफ ऐसा डालना है, कुछ लाइन्स ऐसे डालने हैं जो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपका डोर होगा। मतलब इस चैप्टर में एंड में हमने ऐसा कुछ पढ़ेंगे, जैसा सस्पेंस पिक्चर आपने देखा है, लास्ट में वो रणबीर कपूर को जाता है। तो देखिए एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एक और दूसरा कोई भी एक मूवी ऐसा सस्पेंस मूवी होता है जिसका सेकंड पार्ट आता है। पहले पार्ट में कुछ ऐसा दिखा देते हैं लास्ट में, क्या भी दूसरा पार्ट एग्जांपल देते बाहुबली, सबको पता है बाहुबली। पहले पार्ट में कुछ ऐसा उन्होंने दिखाया जो दूसरे के लिए लोग क्यूरियोसिटी, तो बुक में ऐसा अपना होना चाहिए पहले चैप्टर में एंड में। ऐसे बहुत सारा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये टेक्निक जो है आपको यूज करना है अपने बुक्स में, और उसको वैसे आपने दूसरा डी फॉर डोर, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वो आपका डोर बन जाएगा। तो ऐसा हर एक साथ आप कर सकते हैं, और ये रीटेक टेक्निक था जिससे आप अपने चैप्टर का जो कंटेंट है वो बेहतर बना सकते हैं। अभी ये सब चीज़ें थी, ये आपको इंडिविजुअल बुक के लिए करना था। अभी आज क्या करना है, आपको ना एक लिंक मिल गया, उसमें आपका सबसे पहले आएगा नाम, सबको आपका नाम डालना है। उसके बाद वहाँ पे है आर्टिकल, तो कोई भी एक टॉपिक चूज करना है। सुन लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, जो नहीं करने वाले ना उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाले, ये ध्यान में रखिए। जिनका आएगा उनको ही मिलेगा। तो इट्स अ रिकॉर्ड के लिए वो इम्पोर्टेंट है। और आपको करना क्या है, सुनिए, पहले सुन लीजिए, इजी है, सब लोग कर पाएंगे। आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है, इससे रिलेटेड, इंडिया के रिलेटेड, लाइफ स्किल या मॉरल वैल्यूज, इसके रिलेटेड आपको एक टॉपिक चूज करना है। कौन सा भी एक टॉपिक, जैसे भी इंडिया है, क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं? स्वच्छ भारत आ सकता है, और गवर्नमेंट की स्कीम में बताना, कल्चर के बारे में आ सकता है, पॉपुलेशन के बारे में आ सकता है, फूड्स के बारे में आ सकता है। जो भी आपको टॉपिक लगता है, इंडिया है तो इसके रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। कोई एक टॉपिक को आपको चूज करना है और अराउंड 400 to 500 एक आर्टिकल लिखना है वर्ड्स का, राइट? तो उतना कोई भी लिख सकता है। आप सभी लोगों ने ऐसे लिखा होगा। लैंग्वेज कोई भी चलेगा, नहीं बैरियर, हिंदी इंग्लिश चलेगा। आपको आप कौन सा भी लैंग्वेज, जापानीज, चाइनीज, वो भी आता होगा, वो भी डालिए। क्यों तरसता है तू बंदे, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले बस एक दफ़ा, झांक ले बस एक दफ़ा तू अपने दिल के अंदर। अर्थात जैसे हम लोग, जैसे कोई मतलब किसी को पता नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है, क्या सपना है, क्या करें, तो वो ऐसे भटकता रहता है, क्या करूँ। कभी कोई देखता कि हाँ मुझे ये करना, फिर ये सोचता कि मुझे ये करना, पर कोई किसी का अपना गोल नहीं होता, बाद में जाके बनाता है। फिर क्या है कि वो ये सोचता है कि अगर मैं बना लूँ तो पता नहीं क्या होगा, मुझे मंजिल मिलेगी या नहीं। तो किसी ने कहा है कि जिसमें दुनिया ने हंसाया है, आखिर में उसी ने इतिहास रचा है। तो फिर इसमें क्या है कि अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर दिल से पूछोगे तभी पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है। दूसरों की बात न सुनो, अपने दिल की। एक वंश के चक्कर में तो पूरा वाक जाते हो। मतलब ये है कहने की लड़कियों को कोई नहीं चाहता, लेकिन लड़के जब होते हैं उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता है, और लड़कियों की भूल हत्या ही कर जाती है। तो इस कहानी का मतलब मेरा यही है। So I went in a flashback. We started our journey 8 years back. That time we were just
अपने लिए तो सब जीते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए आप कैसे जियोगे? उस चीज़ के लिए आपके पास एक थॉट प्रोसेस है। उस थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक जरिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Then when we started India is Us, we never wanted to be another NGO. हम नहीं चाहते थे कि इतने सारे NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, हम एक नए NGO हैं। हमने क्या किया? हमने एक NGO इकोसिस्टम बनाया, because we realized NGOs हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स हैं जो काफ़ी फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये उनके CSR रूल्स में आता है। कुछ वॉलंटियर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं बट या तो बस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या ट्रस्ट फैक्टर की कमी है कि हम जिसको 5 रुपये या 10 रुपये डोनेशन दे रहे हैं वो डोनेशन सही जगह जा रहा है कि नहीं। फॉर मी इफ आई एम पेइंग 10 रुपीज टू पानी पूरी वाला ऑल्सो, लाख पकड़ी तो सब मांगते हैं ना भैया उसकी वाला, तो हम अपने 10 रुपये की इतनी वैल्यू है तो आपके 100 रुपये की वैल्यू लेकर बहुत ज़्यादा होगी। ओके, सो व्हाट वी डिड, हमने बोला कि चलो एनजीओ काम कर रहा है, कॉर्पोरेट काम कर रहा है, वॉलंटियर काम कर रहा है, सब अपने अपने डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लेट्स गिव अ डायरेक्शन टू देम, लेट्स मेक एन इकोसिस्टम, क्योंकि सबका एक ही मोटिव है कि सबको अच्छा काम करना। सो वी क्रिएटेड इंडिया इज अस एंड वी बिकेम द इकोसिस्टम ऑफ एनजीओस। वी स्टार्टेड आवर जर्नी विद 12 एनजीओस and now we are having 200 plus NGOs across India. We always try to onboard those NGOs who are having all the documentation at place. There are new NGOs who don't know कि उनको क्या करना है आगे, so we are the guidance source for them. Okay, so that was the breakthrough story because सबके साथ में चलना, हमें हमेशा सब बोलते थे कि आप अपनी जर्नी अलग बनाओ, बट हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें एक दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं बनना है, हमारा बेनिफिट बहुत कम होता है। वी टेक वेरी स्मॉल अमाउंट फ्रॉम इंडिया द डोनेशन थिंग, बट स्टिल वी आर हियर विथ अ पर्पस दैट वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सेकेंड थिंग, आप सब यहाँ पे हो, आप लोग फॉरेन की मूवीज देखते होंगे, कोई फॉरेन जाना चाहता होगा, कोई फॉरेन के क्लाइंट के साथ काम करना चाहता होगा, फिर आपको क्या लगता होगा? फॉरेन इट्स अ वेरी बिग वर्ड। हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि फॉरेन क्लाइंट को कन्वर्ट करने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्लान, यू नीड लॉट्स ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, देन ओनली यू विल गेट सम इंटरनेशनल कॉल्स। वी रिसेंटली गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द ट्रांसजेंडर फीमेल्स फ्रॉम जर्मनी एंड शी वांटेड टू वर्क विद अस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर थॉट प्रोसेस, it's about the work which you do, and it's about the breakthrough experience which should not be experienced only once. ऐसा नहीं एक breakthrough बनाया then our story is completed and we have to just go ahead with that. Try to create several breakthrough stories in your life. एक benchmark create किया, second should be उस benchmark को कैसे तोड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है. That will keep you motivated. And I think that is the way we should move. आप लोग काफ़ी young हो, I can see very young faces. You might be having lots of dreams. If you don't have any purpose, you should be focused. आज जाओ घर पे सोचो, what is the purpose? Start working on it, and always try to think I don't have, and always just promise yourself that you don't have to stop. आपको हमेशा आगे बढ़ना है, and you have to create a story for yourself. सबके लिए, just for yourself, so that when you go and you sleep with a peaceful mind. Okay? Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. It's good to see the creative faces over here. So it's like the beginning of my journey that started 1 year back, and we are doing great in the field of creativity. Basically, I am starting with the publishing houses, and then we are running with around 10 companies at the moment. And the motive to start all the work at the same time as to build the nation that's supposed to be proud in itself. Because we are looking at the 2025 that our books and our creative artists should be reaching every house and every hands. So like the books in itself with the creativity, and like the whosoever could write something that minded that person is totally like the
diamond. Because if somebody writing something, you could expect that that person should be expressing his thought and views in a proper way, as compared with a person who is not like the writing something, who could like the summarize or who could say something that it might not be worthy to be listened and might not worthy to be heard. Because the conversation and the gossip are the two things. So we should be focusing on the conversation, not on the gossip part. So like I have come with the 5 points for the like the 2025 mission of ours, and that the one is the creativity. Because the Indian people are too creative in their mind and the heart. So if we are capturing the creative person like talking about like there are good writers and the great writers, and getting to their point like they are writing some academic books, some poetry, so they could be a great teacher in their field. Like the sir writing the books on the sales, so he could be a great teacher. So why not that teacher we have the teacher in the schools and colleges, and we are working on this mission too. And now that the second thing is like the arts and the foreign books in the Indian subcontinent. So Indian markets are like the flooded with the foreigner book. So we should be writing something that should be like the envisioning and the should be vision of our Indian people and the Indian mindset and the going with the Rig Vedas and the Bhagavad Gita. And like the two more things like the education. We are like the expanding in the fields of space too, and the education sector. We started with the education. We are like the providing education free of cost to in the Delhi only, and we will be coming up in the other parts of the country too. And we are working on the fields of the creativity in the music industry, in the movie, and the space industry. So the motive is to build India at such a level that not even a person could think that India can't be the whole India can't be the prosperousness. So wishing you the great and the happy journey to you. Thank you so much. Thank you ma'am for introducing me. It's so heavy words, but I'm not like this. I'm a simple lady. Myself, my name is Harsh Sethi. I'm principal of a school that is CBSE affiliated. I am working there since 20 years. And my favorite subject is history. My total qualification is quarter MS, MA History, MA Political Science, MA Education, and MA Social Work, BEd, MAd, MPhil, and PhD. And in this journey, I am pursuing MSc Psychology also. So I want to say that at this platform, because due to Mr. Akash, I am here, and I want to share with you some views regarding breakthrough, because this topic is given by Mr. Akash to us. We have to talk on breakthrough. Can you tell me what is the meaning of breakthrough? Anyone? Breakthrough. What is breakthrough? Yes. Being a teacher, I want to create curiosity among you. If simply I tell you the meaning of that word, you can't aware about it. Breakthrough is a situation or an event through which we can improve our performance. I can give you an example, like we are doing any type of research, many times we are doing that. But at a moment, we discover main medicine, main research through which we can cure any serious disease like corona. As you all have seen that during corona, our doctors, our researchers are doing this type of inventions to protect us from that disease. So breakthrough means एक टाइप की सिचुएशन, एक टाइप का इवेंट, ऐसा मोमेंट जो हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकता है. सो डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में भी एवरी मोमेंट चेंज ला सकता है इफ यू कैन. इफ यू कैन यू कंप्लीट दिस सेंटेंस? इफ यू कैन. यस ऑडियंस, इफ यू कैन डू दैट.
अगर आप उस मोमेंट को फील करेंगे तो देन आप उस मोमेंट में अच्छा सोचकर चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में। यस, आपके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, सो प्लीज लिसन केयरफुली। अगर आप सब मेकफुली टॉक करते रहेंगे तो देन फिर इस टॉक का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस ब्रेक थ्रू मोमेंट तक हमें पहुँचने के लिए क्या करना है। ठीक है, आई हैव 5 पॉइंट्स अबाउट दैट। फर्स्ट, know yourself. What should we do? Know yourself. हमारे साथ क्या होता है जब हम प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं तो देन हम सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वही बेस्ट है, बट ऐसा नहीं होता है। और हम जैसा सोच रहे होते हैं उससे हमें अपने लाइफ के डिज़ायर्ड आउटकम्स नहीं मिलते हैं। देन हमें क्या करना है, हमें वो करना है जो हमारे एम्प्लॉयर्स को और हमारी प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करे। मीन्स हमें स्टेग्नेशन लाइफ में नहीं रहना है और हमें उसमें सेटिस्फाई नहीं होना है। जैसे आप देख लेंगे आज जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हमारे यहाँ हैं सभी हमें इंस्पायर करने के लिए आए हैं। और इवन हम बाहर बैठकर सबके साथ यही शेयर कर रहे थे, एवरी पर्सन इज़ अ डायमंड इन दिस वर्कशॉप। एवरी पर्सन इज़ अ डायमंड। एवरी वन इज़ वेरी टैलेंटेड with so much capabilities and qualities. So students, आप सभी इतने ही capable हैं क्योंकि आपके स्टेज से हम इस स्टेज तक आए हैं। तो आपको ये जो सफ़र यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आना है उसके लिए हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसी अचीवमेंट्स हैं, मोमेंट्स हैं जिन्हें कैप्चर करते हुए उसे ही अपना पाथ बनाना है। क्योंकि यही मोमेंट, जैसे आपको पता है आई कैन और आई विल और येस और नो, जस्ट अ सिंगल वर्ड येस और नो में हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। आई कैन ज्वाइन दैट जॉब और आई कैन नॉट ज्वाइन दैट जॉब। आई कैन टेक एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन, आई कांट टेक एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन। दिस मीन्स वी कैन जज एंड वी कैन डिसाइड व्हाट शुड आई डू इन माई लाइफ। सो स्टूडेंट्स, हम यही चाहेंगे कि आप अपने आप को जानने के बाद देन फिर आपने क्या करना है, उस एक्शन प्लान पर आना है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोग्रेस को मेज़र कर सकते हैं। समटाइम्स हम रूटीन वर्क में रहते हैं, देन कहीं भी असेस नहीं करते हैं कि मेरी लाइफ में चेंज क्यों नहीं आ रहा, वो ब्रेक थ्रू पॉइंट क्यों नहीं है। सपोज आपने 1 लाख जॉब के लिए 1 लाख इनकम के लिए टारगेट बनाया है और एट प्रेजेंट आप 10,000 की जॉब में हैं। दिल्ली के लिए तो ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ तो 1 लाख से बच्चों की बिगनिंग होती है। तो आप 10 लाख के पैकेज पर जाना चाहते हैं, बट उसके लिए हमें 10 टाइम्स मोर हार्डवर्क करना पड़ेगा। सिंस चाइल्डहुड हमने यही सुना है, वी हैव ए प्रोग्राम दैट इफ आई विल डू वर्क हार्ड, अगर मैं हार्डवर्क करती हूँ देन आई विल बी सक्सेसफुल। इफ आई विल बी सक्सेसफुल देन आई विल बी हैप्पी। ऐसा ही सुना हमने अब तक कि हम हार्डवर्क करेंगे तो सक्सेस मिलेगी और सक्सेस मिलेगी तो हम हैप्पी रहेंगे। बट इस समय जो हमारे पास स्टेज है यहाँ में इस पॉइंट को रिवर्स करना है। जैसे मैम ने पॉइंट किया था कि फॉर्मिंग में आपको 1 to 10 आना है, 10 to 1 आना है। हमें भी लाइफ में यही करना है, हार्डवर्क, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आप इसे रिवर्स कर दें, क्या होगा फिर? फर्स्ट पॉइंट इज हैप्पीनेस। क्योंकि आप अगर हैप्पी होंगे, आप मेंटली और फिजिकली हैप्पी होंगे, सेट होंगे, क्योंकि सेट माइंड से आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, पीसफुल माइंड से आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। देन फिर आपको जो हार्डवर्क है इस वर्ड को अपनी लाइफ से निकालना होगा। फिर हम किस पर आ जाएंगे? स्मार्ट वर्क। क्योंकि अगर IT के अगर हम एज में जी रहे हैं तो हमें हार्डवर्क करना ही नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क जैसे आप अपने फ़ोन के साथ यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, इवन 90% उसके फंक्शंस हमें नहीं पता है। आईफोन है मेरे पास लेकिन वो सिर्फ बस के 10% फंक्शन ही यूज़ कर रही हूँ, 90% पे मैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हूँ। बट आपके स्टेज पर क्या है, आप वो 90% यूज़ कर रहे हैं जो हम 10% कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप अपने आप को जानने के बाद देन एक्शन प्लान बनाने के बाद देन फिर आप उसको असेस कर सकते हैं। और इन सब के लिए आपको पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस एसोसिएशन से जुड़ने के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंट वैराइटीज़ होने के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं और इन एक्सपीरियंसेस के साथ हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। और आपको भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी हर एक स्टेज को एवरी डे एवरी मोमेंट को असेस जरूर करें, क्योंकि
कि सेल्फ असेसमेंट इज मस्ट। मेरी लाइफ के बारे में कोई और स्टेटमेंट है मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आई डोंट रिक्वायर सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन। अगर आप सोचेंगे कि आप किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए जॉब कर रहे हैं, पेरेंट्स को खुश करने के लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉयर को खुश करने के लिए कर रहे हैं, देन यू आर नॉट डूइंग रियल जॉब। रियल जॉब कब करेंगे? जब आप खुद खुश करेंगे, ठीक है? जब हम खुश होंगे तो शायद हम सबको हैप्पी रख सकते हैं ना। तो आपको वो सेटिस्फाइड लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना है फिर? क्योंकि आज की इसमें तो इतनी नंबर ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं सभी के पास। यस, दिस इज द मेन फॉल्ट इन आवर लाइफ। सो हमें क्या करना है? अपनी डिजायर्स और ड्रीम्स पर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है? और लिमिटेड डिजायर्स के साथ ही आगे बढ़ना है। I am going to give you a evaluation period, right? उसके लिए एक टास्क है सबके लिए। Hope all are listening carefully, because जो मिस करेगा वो evaluate नहीं कर पाएगा। So आज का क्या हुआ? You have started the session with a wonderful poetry session. Even many of them indulge right now. सभी लोगों ने अपनी creativity दिखाई, lines लिखा, हिंदी, English, both language, fine. But we really need a mindset, जो सर ने समझाया। तो चलिए कॉम्बिनेशन करते हैं, पोइट्री एंड बुक राइटिंग कॉम्बिनेशन। सो द टास्क इज फॉर यू इज, आई एम गोइंग टू रिसाइट अ पोएम, राइट? गर्ल्स आर लिसनिंग एट द बैक। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ आपको। इट इज इन हिंदी, बट आई विल नॉट गिव यू द टाइटल ऑफ इट। In the end, I will ask one by one. Only you have to raise your hand. If I get a combined answer, that person will be cancelled for the prize or principal evaluation. ठीक है? जिसको भी लगता है कि yes, I can connect with this poem and I know the title, आप hand raise करेंगे और मुझे बताएंगे। All are ready for the evaluation or a test? That's great. Fine. So hold your heart and listen carefully, because there will be no revise button right now. Right? Okay. So the lines start. खिलती मुस्कुराती सूरत है प्यारी, हजार आशाओं की ये टोकरी न्यारी। खिलती मुस्कुराती सूरत है प्यारी, हजार आशाओं की टोकरी है न्यारी। वो कहीं आज यौवन बन खिली है, वो कली आज यौवन बन खिली है, जिसकी गूंजी थी कभी किलकारी, जिसकी कभी गूंजती थी किलकारी। माना जोश गर्व प्रेम निष्ठा, माना जोश गर्व प्रेम निष्ठा, सब अपने चरम पर है। उनकी अटखेलियों में झूमता ये यौवन भी है। दिल में कुछ कर गुजरने की, दिल में कुछ कर गुजरने की पूरी चाह और जुनून भी है। स्वर्णिम पलों का स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम पलों का ये स्वर्णिम अवसर नए जीवन की शुरुआत है। मन में हजार आशाएं भर, मन में हजार आशाएं भर, ये मन बस उड़ने को तैयार है। ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, अरे ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। मन को ये पूरा विश्वास है, चाहे तो दुनिया फतेह कर ले, जब दोस्तों का साथ है। यूं ही नहीं मर मिटते हम पर लोग, अजी यूं ही नहीं मर मिटते हम पर लोग, यूं ही नहीं मर मिटते हम पर लोग। कुछ तो हम में अलग सी बात है, जोश और विश्वास का ये एक अनूठा रास है। ये लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा, कनेक्ट करेगी दिल तक। 100 ठोकरों के बाद भी दिल फिर चलने को तैयार है। 100 ठोकरों के बाद भी ये दिल फिर चलने को तैयार है। जिंदगी की इस जद्दोजहद में, जिंदगी की इस जद्दोजहद में यौवन गिर के संभलता हजारों बार है। दिल टूटने की आहट खुद को भी ना हो, दिल टूटने की आहट खुद को भी ना हो। ऐसा संयम कायम कर, वो जीता मरता हजारों बार है, वो जीता मरता हजारों बार है। आगे और भी है, लास्ट कंक्लूडिंग लाइन। पर मुस्कुराहट
मुस्कुराहट चेहरे से खोने ना देना, ये मुस्कुराहट चेहरे से खोने ना देना, यही तो उसका अनूठा अंदाज है, यही तो उसका ये अनूठा अंदाज है। अरे भैया जन्मों लग जाते हैं इसे पहचानने को, अरे भैया जन्मों लग जाते हैं इस पहेली को सुलझाने में, इस पहेली को जानने में। ऐसे ही नहीं टीनेजर्स हमारा नाम है, ऐसे ही नहीं टीनेजर्स हमारा नाम है। And I wanted my wonderful audience that surely you will get a title. So I would like to invite both of them to speak a few lines about their books, so that we just do the book launch and we'll sound it. So let me give honor to Shubha ma'am first. Ladies first. Yeah, yours. Shubha ma'am, over to you. Thank you so much. I have been just watching everyone sitting from that place, and I was thinking, सुबह से आप लोग हमें सुन रहे हो, and so patiently आप लोग ने response कर रहे हो, and it was so nice to see all the bright smiling faces sitting here. Basically, I'm an educator as well as I'm a master trainer also, who is conducting webinars and seminars for the teachers and students. So आप समझ सकते हैं कि मेरा interaction students के साथ सुबह शाम वही होता रहता है. For more than 20 decades, I have been teaching to senior secondary classes, and I'm the head of English department also. So it happens so कि सब होता क्या है, हम सबकी life में कुछ इमोशंस होते हैं, हम लोग इमोशनल बीइंग है ना, कभी गुस्सा, कभी हंसी, कभी कुछ, तो there are so many changes, right, that keeps happening in our life. Our life is not like a straight line of electrocardiograph, right? It should not be that way. So we have ups and downs in life, we have different emotions, and not only me, सबने feel किया होगा. During COVID, situation was such that we lost our loved ones, right? That was a period which many of us might not like to remember. But अगर आप उसका जो positive side देखें, it has taught us so many things. Family value सिखा के गया है. How to spend value time with family, that also we have learned. During COVID, what happened? I lost some of my family members, those who were very close to my heart, and my pain was so unbearable. I did not know what to do, and that pain came out in the form of a poetry, right? So when I was writing, I felt that poetry was already there in me, but I required an impetus, and that was the grief which I felt after losing my family member whom I loved a lot. She was my elder sister, and she was like my mother, and I was very close to her, and suddenly I came to know that she's been hospitalized. I went to meet her. She just kept looking at me. She was not able to utter a single word, and then she left. And that moment touched me so much. जब कभी-कभी होता है, जब दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप किससे शेयर करोगे? अगर मैं किसी से शेयर करती हूँ, तो उसको भी मैं दुखी कर देती हूँ. यही सोच के I did not share. And finally, when I found it unbearable, I started writing. On the day I started writing, I don't know how much time I spent. I went on and on and on. And it came out in the form of a poem. And when I finished, I found I was feeling very relaxed. I was able to take out that grief on the paper. So from that moment, I came to know that the words have a lot of power. शब्दों में बहुत शक्ति है. वो आपको encourage भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको relief भी दे सकते हैं आपके pain से. So I just penned down at the poem. I would like to read few lines in front of you. That was of my first poem, and then from there my journey began. And now I'm standing in front of you as an author and a writer. I'm writing my second book also, with the help and support with Mr. Akash Babbar.
who just encourage, who is very encouraging. He keeps on encouraging and supporting. So I'm writing my second book, but I would like to read the poem that I wrote, that is the first one. Every house has a story to tell. Turn the pages of time, dust the subtle particle, and you will find the story. You will find some good and some not too good, so good memories. Yes, memories. Hidden in the pages of time of a house that vibrated with emotions, resonated with never dying sound. But now, alas, silence, the silence of death rules all over. The people living in the house deserted it for their journey beyond. But the house is still there. The house is still there because it's a non-living. But the living person has left the deserted the house. This is a long poem, 3 to 4 pages. I will leave it here. I want you to read it. When you will read, you will find that you will be able to realize or say connected with the emotions that I have shared in the poem. और आपको भी कहीं ना कहीं आपके emotions उसमें नजर आएंगे when you will read that. Thank you so much. So thank you so much, audience. Finally, my dream come true. My book has been launched, My Budding Teenager. It's not really a hard work of mine, it's a hard work of my team, my students, my dearest. And it's really thankful to each and everyone. And you know, very firstly, the book is a dedication or a tribute to my father, Mr. C.B. Saraswat. And I lost my father during pandemic. But yes, I have a parents, like a close one, my father-in-law and mother-in-law. Yes, they are like my loving parents, Dr. R.L. Sharma and Premlata Sharma. Thank you, Mummy, Papa, for supporting me and encourage me to write a book. Without you, it cannot be possible. And really, I can't forget the name of my loving daughter, Ashi Saraswat. She is really close to my heart, and she's the only source of inspiration of me. And none other than my all family members, my husband and my younger one, son as well. Yes, they are panicky, but still they are a part of my life. So really thankful to each and everyone. Really, I feel so excited today, and it's a motivation to write again, and I'll be come back with my other creation. So thanks a lot for giving me opportunity, even the Akash sir as well, because under his Bhabat publication, my book has been launched. So thank you, Akash sir, for giving me this opportunity, and I'm really thankful once again. I'm Preeti Saraswat, thankful to everyone for supporting my book, My Budding Teenagers. So teenagers, the book is for you, for parents and for everyone. Read my book, give your reviews, and I'm eagerly waiting for that. Thank you so much. Thank you everyone. आज हम बात करेंगे आकाश जी से, जो कि भाबर इंटरनेशनल पब्लिकेशन के जो ऑनर है। ओके, सो थैंक यू। और ये जो आज का वर्कशॉप था, इसके पीछे लॉजिक ये था कि हम आज 7 तारीख थी और 2023 में हम हैं, तो कुछ ऐसे लॉजिक्स हमने क्रिएट किए थे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, जिसमें हम यहाँ पे वर्कशॉप किया था बुक राइटिंग, पब्लिशिंग, ब्रांडिंग का, और जिसके साथ हम स्टूडेंट्स से या टीचर्स से इमीडिएटली आर्टिकल्स, पोएम्स कलेक्ट किए थे, और उसको फिर हम ई बुक करके अमेज़ॉन पे अवेलेबल करने वाले हैं। तो ये सब कुछ ऐसे लॉजिक्स थे, 7 लॉजिक्स एक्टिविटीज़ हम करने वाले थे विथ 23 स्टूडेंट एंड अदर 23 मेंबर्स। तो ये एक सभी लॉजिक्स का मिला के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए वो अप्रूव हुआ था, और वी सक्सेसफुली अटेम्प्टेड। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल लोग भी होते हैं, इंटरनेशनल ऑथर्स के हमने उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उनके बुक भी लॉन्च किए हैं। पर ये जो आज का इवेंट था, ये स्पेशली वुमेंस के लिए था, वुमेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए था। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ। माई सेल्फ प्रीति सारस्वत, एंड आई एम working as a PGT English in one of the school in Noida, Modern Public School. So I'm from Modern School Noida, and you know, I'm working on this book since so many days. Even I was not sure that I'll be able to write or not, but thankful to Akash sir who motivated me, and I have written my book with the help of my budding team. My budding team actually is my students, my close one, even the teenagers who really connect with this idea.
तो जब मैंने ये बुक लिखी, आई टॉक टू ऑल माई टीनेजर्स एंड दे रिलेट सेड मैम हम भी अपनी कुछ क्रिएशंस देना चाहते हैं। आई सपोर्टेड देम, उन्होंने सपोर्ट किया और अपनी बुक में उनके क्रिएशंस को भी लिखा। तो इस बुक में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने चीज़ें पेन डाउन की हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन एंड अ रियल फीलिंग्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द टीनेजर्स। और अगर हम बात करें तो ये बुक किसको पढ़नी चाहिए और क्यों, ये बुक एक्चुअली सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं है, ये बुक हर उन लोगों के लिए है जो आजकल यंगस्टर्स का डील करते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं या जो ग्रो कर रहे हैं बच्चे, या पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो सब एक बार जाने कि उनकी मनस्थिति क्या है, उनका मेंटल स्टेट क्या है और वो किस तरह से चीज़ों से जूझते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं गिनाई है, द बुक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैंने उन सबका सोल्यूशन इस बुक में दिया है। तो मुझे लगता है कि जब सारे लोग उनकी फीलिंग्स को जानेंगे, उनके अंदर जो चल रहा है उनको पहचानेंगे, तो श्योरली उनसे कनेक्ट कर पाएंगे और जो सजेस्टिव सॉल्यूशंस मैंने उस बुक में दिए उन सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे एंड श्योरली देन दे बोथ कैन लीड अ हैप्पी लाइफ। क्योंकि मुझे लगता है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऑलमोस्ट अभी 1 ईयर अराउंड होने जा रहा है। एक्चुअली जब सर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टार्ट कर रहे थे, so I got a message in one of the teachers group that sir is looking for some teachers who can write an article on Azadi Ka Amrit Mahotsav. So I contributed myself, मैंने अपना आर्टिकल लिखा, I got selected and I became a part of world record in Mumbai and that was my life changing event and तब से मैं सर के साथ काम कर रही हूँ। सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो why should not write your own solo book। पहले तो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था, I was not confident कि मैं लिख सकती हूँ, but he shared some techniques with us, he started a workshop, I joined and I got a confident yes I can also write a book। So this is my first solo book, My Budding Teenagers। इस तरह से मैं सर के साथ जुड़ी और आज सर के पब्लिकेशन में ही मेरी बुक लॉन्च होने जा रही है। ओके मैम, 2 लाइन आपकी बुक से एक बार अंतिया जो भी है आपने लिखा है वो बिल्कुल सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए टीनेजर्स की रियल फीलिंग्स क्या है, टीनेजर्स की रियल फीलिंग मैं अपनी मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, माई बडिंग टीनेजर्स। तो हमने उसको थोड़ा सा हर एक मोती में पिरोने की कोशिश की है, तो मैं एक 4 लाइनें आपको बताती हूँ। सुंदर प्यारी शक्लें हैं न्यारी, आशाओं की टोकरी भरे चलते हैं ये लेके सवारी। सुंदर प्यारी आशाओं की टोकरी लिए चलते हैं न्यारी, मन में 1000 आशाओं लिए ये टीनेजर्स करते हैं दोस्तों के साथ हर रंग मंच की सफारी। ये सारी लाइन से मैं ऑन द स्पॉट ही क्रिएट करती हूँ, लाइक जस्ट द सेम लाइन आई हैव रिटन ऑन द स्पॉट। सो ये जो माइंडसेट है मेरा खुद से एट अ टाइम लाइंस क्रिएट करने का, इसने मुझे मोटिवेट किया कि वाई शुड नॉट मिक्सड। तो मेरी इस बुक में कुछ आर्टिकल्स भी हैं, कुछ पोम भी हैं, लाइन्स भी हैं। सो रियली दिस इज़ अ हार्ड लाइफ ऑफ टीनेजर्स बट इट्स नॉट स्ट्रगलिंग। अगर हम हैप्पी मूड से टीनेजर्स के साथ काम करेंगे श्योरली दे विल बी हैप्पी और वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। क्योंकि यही मेरी लास्ट लाइन थी इस पोम की कि ऐसे ही नहीं टीनेजर्स हमारा नाम है। यस, ऐसे ही नहीं टीनेजर्स इनका नाम है, बिकॉज वो इतनी सारी स्ट्रगल्स को फेस करने के बावजूद ही हमेशा हैप्पी फेस रखते हैं। कमेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं दर्शकों को? बिल्कुल, बिकॉज दिस बुक्स एक्चुअली अ मैसेज फॉर एवरीवन। Yes, do not go for their upper perception कि बच्चे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आजकल देखिए कितने सारे आप न्यूज़ फ्लैश होते हुए देखेंगे कि एक इवन 12-13 ईयर्स टीनेज ने सुसाइड कर ली, एक हैप्पी फेस चाइल्ड ने जिसको आप लगेगा भी नहीं एंड ही डिड सो। और ऐसे मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, इवन मैंने यूट्यूब पे एक इंटरव्यू देखा जहाँ पर एक सिस्टर ने एक इंटरव्यू शेयर किया कि उसका भाई जो सिर्फ 14 साल का था और उससे 5 मिनट पहले उसने बहुत अच्छे से बात की और सडनली 15 मिनट्स के बाद उसे पता चलता है कि उसके यंगर ब्रदर ने अपने आप को लॉक किया और सुसाइड कर ली। एंड शी वाज सरप्राइज कि उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो तो बहुत खुश था, अभी तो मुझसे हंसी मजाक कर रहा था एंड बिकॉज सुसाइड। तो लोगों को यही बताना है कि उनके हैप्पी फेसेस पे मत जाइए बिकॉज एक्चुअली दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट इनसाइड। वो मुस्कुराते चेहरे अंदर से बहुत स्ट्रगल करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि स्ट्रगल नहीं करेंगे या उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, लेकिन आप ज़रा बैठिए, जानिए, उनकी मनस्थितियों को समझिए कि वो एक्चुअली कितनी सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। उनके ऊपर एकेडमिक प्रेशर है, पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव, वैल्यूज़, मार्क्स लाना, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, इतनी सारी चीज़ें उन्हें करनी है। एक्स्ट्रा टैलेंटेड भी बनाना है, कोकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी है। मतलब दे आर नॉट अ रेस हॉर्स।
एक बच्चा इतनी सारी चीज़ें कैसे करेगा, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक्सपेक्टेशन इज़ फाइन, बट आप ज़रा उसकी भी सुनिए, उसके दिल की भी जानिए, और प्यार से, डांट फटकार से नहीं। तो इसमें सॉल्यूशन दोनों का है, क्योंकि पेरेंट्स की भी कुछ कंप्लेन होती है, बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है, बच्चा तो बहुत ही स्टबर्न हो गया है। तो इट्स गिव एंड टेक, बोथ ऑफ इट। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा एटिकेट मैनर्स में रेस्पेक्टफुली बात करे और एकेडमिक में अच्छा हो। तो दोनों के साथ कम्युनिकेशन, बच्चे बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा हमारी बात समझ ही नहीं रहा है, वो समझेगा जब आप उसकी बात सुनेंगे। सो व्हाट वी रियली वांट, बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड टीनेजर और स्टूडेंट। एंड मैंने अपनी बुक में ऐसे ही कुछ ईजी सॉल्यूशन दिए हैं, जिसमें बिना किसी एफर्ट की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको अगर पेरेंट्स अप्लाई करें तो बच्चों के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन सकता है, और तभी बच्चे अपनी इनर फीलिंग आपके साथ शेयर करेंगे। वरना बच्चा सोचेगा पेरेंट्स को प्रॉब्लम बताएंगे तो और बढ़ जाएगी, ये और 10 बातें हमें बता देंगे कि बाहर नहीं जाना, अच्छा आज उसने टीज़ किया, अब तुम्हें बस में भी नहीं जाना। सो दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन आई हैव given in my book, and I thought it really beneficial. So this is a message for everyone. Please create a bond with your teenagers.